All are good. Nice. Move to our next topic of biochemistry. That is your pentose phosphate pathway, right? Which is also called a hexose monophosphate (HMP) pathway. Basically, why it is related to your glycolysis? Because it is the alternative pathway of glycolysis, right? To generate the how to get the energy in the form of NADPH, in the glycolysis what we will get, we get the pyruvate as a the energy component for the muscles, and lactate also for the to continue the entire processing of the body by getting the energy, right? As I said, it is the alternative pathway of glycolysis, and in the same way we will get the energy from this pathway also, right? So move with the to start this, we have to know the introduction part of this, right? As like I mentioned, HMP pathway, also called the PPP, 3P, Pentose phosphate pathway. Why it is called PPP? Pentose pathway means we will get the ribose sugar. We generate the drive sugar from this pathway also. Instead of, apart from the energy, right? We also get the and pentose phosphate, which is your nucleotide, 5-member ring of nucleotide. Let's begin with the introduction part of HMP shunt. It is a complex pathway than glycolysis. Why? Because instead of ATP, we will get the energy in the formation of NADPH, which help that NADPH will help to synthesize the fatty acids, steroids, right? And it also help to reduce the another hormone, that is the glutathione, which what the activity the glutathione is do, antioxidant activity, right? As I earlier mentioned, that it also called the PPP, pentose phosphate pathway, because we derived the ring sugar or nucleotide from the HMP shunt. That means it synthesized your ribose from nucleotide and nucleic acid formation, right? Move to next slide. That is the glycolysis is occur in the cytosol. In the same way, this pathway will also occur in the cytosol. ठीक है, जैसे कि साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस चल रही थी, उसी तरह एज आई अर्लियर मेंशन दैट इट इज अ alternative pathway of glycolysis, right? So in the same the cytosol, your pentose phosphate pathway will occur. उसके बाद क्या है कि ये ऑक्सीडेशन एनर्जी करवा देता है बाय द डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है? इट विल यूज द NADP पॉजिटिव, नॉट NADH, NAD positive, ठीक है? NADP positive will be used here and not NAD positive. How this will, the entire process will happen by the two processes, two steps, ठीक है? एक तो हम जैसे बोलेंगे इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेस आएगा, दूसरा रिवर्सिबल मोनो ऑक्सीडेटिव फेस आएगा, नॉन ऑक्सीडेटिव फेस आएगा. जो मैंने बोला कि इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेस आएगा, मैं आपको इसका पाथवे दिखाऊंगी, ठीक है? फ्रॉम यू विल गेट इजिली to understand that what exactly happened in the entire process, right? Before that, you have to be know the little bit theory of the this pathway. क्या होता है कि इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा कि जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, as just need to revise the glycolysis process, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया था ना second step में in the presence of hexokinase. In the same way, we also require the glucose 6 phosphate molecule, जिससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो and 3,5 जो कार्बन शुगर्स हैं वो मिल जाएंगी हमें, ठीक है? जैसे ही 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जनरेट होगा, वो हमें क्या देगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे एंड जो हमारी कार्बन शुगर्स थी वो मिल जाएंगी.
उसके बाद क्या होता है कि इरिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज बोल रहे हैं। इससे क्या होगा कि रीअरेंज हो जाएंगे जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये रीअरेंज कैसे होंगे ये अपने पाथ में जब हम करेंगे यू विल गेट टू नो दैट इजिली। अभी ऑक्सीडेटिव फेज में देखिए क्या हो रहा है कि डिहाइड्रोजनेशन हो गई। किस चीज की? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की। किस चीज में? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, जो कि कैटालाइज्ड कौन सी एंजाइम कर रहेगी? डिहाइड्रोजिनेस। नाउ यू कैन सी हियर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जनरेट हो गया। ठीक है, वही मैंने बोला कि NADP पॉजिटिव की इन्वॉल्वमेंट होगी, NADP पॉजिटिव की होगी, NAD पॉजिटिव ओनली की नहीं होगी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट इज कन्वर्टेड इनटू NADPH एंड हाइड्रोजन आयंस यू विल गेट। अभी क्या है? डिहाइड्रोजिनेस हो गया, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रो। ठीक है, हम क्या देते हैं ना, हम डिहाइड्रेट फील कर रहे हैं, हमें लॉस ऑफ वाटर फील हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कम हियर टू loss of the water molecules, split the water molecules, and your product you will get 6 phosphogluconate. I'm again and again saying, to understand this pathway you must know the glycolysis pathway is each and every step with the presence of enzyme। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो आपको ये पाथ ऑल्टरनेटिव पाथवे क्लियर हो जाएगा, नंबर 2 आपको ग्लाइकोलिसिस पाथवे एज सच याद हो जाएगा। ये क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। व्हाई आई यूज्ड टू से in the biochemistry phase you everything is interconnected to each other, you must be remember the things, you must be understand the things, don't be cram, right? So क्या होता है, ये पाथवे ये प्रोडक्ट बन गया। अभी क्या है कि ये भी 6 कार्बन है, तो हमें एंजाइम भी कुछ 6 कार्बन वाला ही चाहिए होगा। एंजाइम कौन सा आएगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस, राइट। अभी ये देखिए डिहाइड्रोजिनेस आ गया, हाइड्रोजन आयंस क्या क्या होंगे जो ऊपर बने थे वो रिमूव हो गए यहाँ पे। again NADP positive is converted into this, and here this, here the carbon dioxide molecules also we get NADPH as well as the carbon dioxide। ठीक है, हमें कौन एक मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हमें 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम राइबोस बोलते हैं। अगेन यू कैन सी हियर इजिली राइबोलोस 5 फॉस्फेट 5 कार्बन कंपोनेंट वी गेट थ्रू द ऑक्सीडेटिव फेज। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये बहुत इजी स्टेप है। आपको ऑक्सीडेटिव फेज का पता होना चाहिए, आपको नॉन ऑक्सीडेटिव फेज का पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस पाथवे ओनली, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव जो पाथवे है उसमें क्या हो गया, नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में राइबोलोज 5 फॉस्फेट हमें मिल गया। ठीक है, ये सबस्ट्रेट 2 एंजाइम बनाएगा। क्या क्या करेगा? आपका सबस्ट्रेट ही था ये जो आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से मिला, ऊपर अभी हमने जो ऑक्सीडेटिव पाथवे किया, ये हमें 2 एंजाइम कौन सी है? कीटो आइसोमरेस एंजाइम होता है। ठीक है, जिसमें राइबो 5 जो 5 फॉस्फेट था वो यूज्ड होगा न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियो एसिड की सिंथेसिस के लिए, जेनेटिक मटेरियल को जो आपका ATP GTP ठीक है UTP वो सारा मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद ऑल्सो इट ऑल्टर्स द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन किस चीज की? जाइलोस 5 फॉस्फेट की। ठीक है, अभी जो जाइलोस फॉस्फेट है वो भी 5 कार्बन है एंड आपका राइबोस भी क्या है? 5 कार्बन है। ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे किस चीज के साथ? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ। इफ यू रिमेंबर जब आपका एल्डोलेस एंजाइम आया था ग्लाइकोलाइसिस में तो वो एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो गया था DHAP में, एंड दूसरा वो कन्वर्ट हो गया था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ द फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किया। तो यहाँ पे जब ये दोनों एंजाइम नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में ये बात हो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जाइलोस 5 फॉस्फेट ठीक है एंड राइबोस 5 फॉस्फेट, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देंगे एंड सिडोहैप्टलोस 7 फॉस्फेट देंगे। एक 3 कार्बन कंपाउंड एक 7 कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? ट्रांसकीटोलेस। ठीक है, ट्रांसकीटोलेस एंजाइम ने हमें 2 प्रोडक्ट दे दिए। ठीक है, अब अभी ये क्या है, हमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी मिल गया जो कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में भी मिला था। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट जो आपका
प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट है, वो कौन सा आया, सीडोहैप्टोलूस, जो कि 7 मेंबर कार्बन है। ठीक है, वहां पे आपको ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी 7 कार्बन कंपाउंड नहीं मिला था, बट हियर यू गेट द 7 कार्बन कंपाउंड, एंड in the presence of which enzyme, ट्रांसकीटोलेज। गुड। अभी क्या है, 3 फॉस्फेट जो ग्लिसरेल्डिहाइड था एंड जो सीडोहैप्टोलूस 7 फॉस्फेट था, वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये ट्रांस एल्डोलेस एंजाइम आएगा, जो कि अगेन हमें हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट वुड बी योर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो ग्लाइकोलाइसिस में भी मिल रहा था, but additional substrate you get erythrose 4 phosphate, correct? Good. What else is happening in the non oxidative phase? हमें दो कंपाउंड पता थे, एक तो erythrose 4 phosphate, another is your xylose 5 phosphate। अब ये ट्रांसकीटोलेज की एंजाइम की प्रेजेंस में हमें दो प्रोडक्ट दे चुके हैं। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स। एक तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिल गया, सेकंड आपको क्या मिल गया, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। If you see the pathway, then you easily understand what is happening here. Uh, just see very carefully. Okay. As we earlier mentioned in the above slides, that ribulose 5 phosphate is we get as a substrate। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस किस एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट से आई, सबसे पहले तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी दैट हाउ द दिस एंजाइम्स हैज बीन वर्कड। Ribulose 5-phosphate, see the arrows. Apiprase enzyme, xylose 5-phosphate. ठीक है, you will get the xylose 5-phosphate. From this, in the presence of enzyme ketoisomerase, again you will get the ribulose 5-phosphate. Ribulose 5-phosphate again, 3 epimerase enzyme, xylose 5-phosphate. Right now, this is interconnected to form the glyceraldehyde 3 phosphate in the presence of which enzyme, transketolase। Glyceraldehyde 3 phosphate, remember, product of your glycolysis। ठीक है, सेकेंड प्रोडक्ट जो आपका डाइहाइड DHAP एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, आयोडोलेज। ठीक है, अभी यहाँ आयोडोलेज नहीं चाहिए, यहाँ पे हमारा जो फॉस्फो ट्रायोस आइसोमरेज आएगा, जो हाफ लिटिल मॉलिक्यूल ऑफ 1,6 बिसफॉस्फेट बनाएगा। अभी बिसफॉस्फेटेस एंजाइम आएगा, दैट विल मेक योर फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। अल्टीमेटली ये देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। आपका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ 6 फॉस्फेट हैज बीन फॉर्म 5 फॉस्फेट था। ठीक है, ये दोनों 5 कार्बन कंपाउंड है। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द एंजाइम, हाउ इट वर्क्स, राइट। यहाँ पे फर्स्ट एंजाइम आपका आया ट्रांसकेटोआइलेज, जिसने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया। राइबोस 5 फॉस्फेट ने अपना 7 फॉस्फेट ग्रुप आपका सिडोहैप्टोलूस बना दिया, विच इज द different substrate instead of your glycolysis has been formed। glycolysis pathway में glyceraldehyde 3 phosphate बना था, यहाँ पे एक additional product आपका ribose 5 phosphate बन रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में हेल्पफुल हो रहा है। वो आपको ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज सिडोहैप्टोलूस 7 फॉस्फेट में। क्लियर यहाँ तक? अभी ये 7 मेंबर कार्बन है, ठीक है, तो ये एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिथ्रोज आगे जाके ट्रांसकीटोलेज enzyme again worked to break down it into the another substrate, that would be your fructose 6 phosphate। ये सारी चीजें ऊपर स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज जस्ट द जनरल डिस्क्रिप्शन जो आपको पाथवे से अंडरस्टैंड होगी। अगेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे मिला, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमें जाइलोलोज से भी मिल रहा है, राइबोस से भी मिल रहा है। अल्टीमेटली इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम, यू विल गेट योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और डिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, जो चाहिए था। अगेन साइमल्टेनियसली आपके नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फेट पाथवे में क्या हो रहा है कि आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ बिसफॉस्फेटेज एंजाइम, इट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे।
ठीक है, यही सब चीजें कहाँ हो रही थी, आपकी ग्लाइकोलिटिक पाथवे में हो रही थी, राइट। सो ग्लाइकोलिटिक, दैट्स व्हाई इट इज द अल्टरेशन ऑफ योर ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, पीपी पाथवे हमें दो चीजें दे रहा है, एनएडीपी एनएडीपीएच एज एनर्जी दे रहा है, एज वेल एज आपका राइबोज शुगर्स जो कि मेंटेन कर रही है आपके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को एंड योर मेकिंग योर न्यूक्लियोटाइड, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी ये जो हम एनएडीपीएच बोल रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एक तो ये बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इट्स टू, इट सिंथेसाइज योर फैटी एसिड्स। नंबर टू, इट द अमाइनो एसिड है, जो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्विंग रहती हैं, जैसे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज रह गया, ठीक है, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, आपके डिस इलेक्ट्रॉन डोनर से, ऑक्सीडेशन ऑफ डिस से मिलते हैं, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन चेन से हमें ड्राइव होता है। अभी एंटीऑक्सीडेंट जितनी भी रिएक्शन है, चाहे वो ग्लूटाथायोन का मेडिएटेड रिएक्शन होता है H2O2 पे करना, ठीक है, तो ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ एनएडीपीएच होता है। जितनी भी डिटॉक्सिफाइंग ऑफ ड्रग्स होती हैं, जैसे कि साइटोक्रोम P450 हो गया, जितनी बॉडी में सेल्स हैं हमारे फेगोसाइटोसिस करवा रहे हैं, वो चीज एंड इसके थ्रू होएगी। इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन, ठीक है, वो भी सारा कौन मेंटेन करके रख रहा है, अपना जो आपका एनएडीपीएच है। अभी हमें बात करनी है कि पेंटोज शुगर्स क्या होती हैं, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले जो पेंटोज शुगर्स होती हैं, ये अपने न्यूक्लिक एसिड्स, जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए डीएनए, ठीक है, उसकी सिंथेसिस करवाने में हेल्प करती है। जैसे कि मैंने बोला था ना कि वहां पे आपको जो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स होते हैं, जैसे जब हम न्यूक्लियोटाइड्स करेंगे ना, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगे, यू विल गेट टू नो इजिली दीज टर्म्स, राइट। जैसे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स में एटीपी जीटीपी आपके, ठीक है, यूटीपी हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट में चाहिए होती है ना, सिंथेसिस करवानी होती है उसकी, तो वो आपका पेंटोज शुगर्स करवाती हैं, ठीक है, जो डीएनए के स्ट्रक्चर को मतलब स्ट्रेंथ देने के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस करवाती हैं, ठीक है, पिरामिड्स। अभी ये जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, वो सारे आपके स्केलेटल मसल्स की जो सिंथेसिस होती है, वो पेंटोज शुगर के थ्रू होती है। अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखें, तो अगर जेनेटिक डिफेक्ट आ गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेसिस में, ठीक है, तो वहां पे इम्पेयरमेंट द जनरेशन ऑफ, वहां पे प्रॉपर नहीं बन पाएगा एनएडीपीएच, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में इम्पेयरमेंट हो जाएगी, एक्स क्रोमोसोम विल नॉट फुली डेवलप। तो मेडिटेरियन एंड एफ्रो जो कैरिबियन ओरिजिन होता है, ठीक है, वहां पे ये चीज देखी जाती है, ज्यादातर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है डिहाइड्रेट सुप्रेस हो जाता है जेनेटिकली, तो वहां पे ह्यूमिलाइसिस, ह्यूमिलिटिक एनीमिया लोगों को ज्यादा हो जाता है। रेड सेल्स अगर ये ग्लूकोज 6 प्रेजेंट नहीं है बॉडी में, तो ह्यूमिलिटिक एनीमिया होगा, ठीक है। मतलब आपके जो आरबीसी है, उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, उससे पहले वो डेड हो जाएंगे। उसके बाद जितना सेल है उस पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब आप प्रोन हो जाओगे किसी भी इन्फेक्शन के लिए, आपको इजीली कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो मतलब कोई भी आपको एंटीबायोटिक, एक परमानेंटली आपको ब्रीदिंग इशू हो जाएगा, मतलब परमानेंटली कोई डिजीज पे आप आपको इजीली हो जाएगा, टारगेट हो जाओगे आप उस चीज के लिए, ठीक है। तो अगर ये चीज नहीं है, देन यू मस्ट बी get aware from these kind of the infections, and must be visit to the clinic and take the advice from the your doctors, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू, इस सारे के सारे पाथवे को अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट बी नो फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, मेटाबॉलिज्म और द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, वहां पे आपको एनर्जी मिल रही थी। डिफरेंस ओनली ये है कि एटीपी में एनर्जी मिल रही थी, यहाँ आपको एनएडीपीएच से मिल रही है। एटीपी भी ओनली वन मॉलिक्यूल विल जनरेट बाय दिस पाथवे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसे हम एचएमपी शंट भी बोलते हैं, ये पाथवे कंप्लीट होता है विद द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, we will clear out your doubts. Thank you so much.